जैन टॉक्स के 90th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉक सेशन है वो अपने आप में कुछ खास है, क्योंकि आज के टॉक सेशन में जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर युवाएं अपने विचार रखने वाले हैं। पिछले जो टॉक सेशंस हुए उसमें हमने कुछ अलग रूप देखा था, पर आज कुछ अलग रूप देखने वाले हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ पैनल के ऊपर जैन फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर रमेश शाह जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बहुत ही आदरणीय और खास व्यक्ति जजेस के पैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, जिसमें मिसेस सोनल परीख जो कि हमारे साथ मोरबी से जुड़े हुए हैं, जो गांधी जी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। साथ ही प्रणव कोठारी जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर अरिहन जैन जयपुर से जुड़े हुए हैं। आज की प्रतियोगिता की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज की प्रतियोगिता दो ग्रुप्स के अंदर होगी, सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप के अंदर 4 कंटेस्टेंट होंगे, जिसके अंदर से एक को विनर डिक्लेयर किया जाएगा और जैन टॉक्स की ओर से किंडल दिया जाएगा। जो सीनियर ग्रुप है उनके आज के कंपटीशन का विषय है जीवन में धर्म का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन योर लाइफ। और दूसरा जो ग्रुप है वो है जूनियर ग्रुप, जिसके अंदर 13 से लेके 19 इयर्स की एज के युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके अंदर भी 4 कंटेस्टेंट है, एक को विनर डिक्लेयर किया जाएगा और जैन टॉक्स की ओर से किंडल गिफ्ट में दिया जाएगा। उनका जो विषय है वो है जैन जीवन शैली और उसकी प्रासंगिकता, जैन वे ऑफ लाइफ एंड इट्स रेलेवेंस टुडे। आज की जो प्रतियोगिता है उसके अंदर हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो या तो हिंदी या तो इंग्लिश के अंदर अपने विचार जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर व्यक्त करेंगे। सो आज के टॉक्स की शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर रमेश शाह, फाउंडर ऑफ द जैन फाउंडेशन, to welcome our judges, contestant, viewers, and to share his mission and vision about the Jain Foundation. Mr. Ramesh Shah. Thank you, Neil Bhai. Jai Janendra. Good evening to all our participants, judges, Sonal ji, Hariyan ji, Pranav ji. Each one of them are highly accomplished. Just to give a quick brief, which Neil Bhai has already given, and I'm sure all the participants and the viewers knows about them. And today it's a very proud moment for us to have these judges on our platform. And I'm sure each and everybody will see the value and the views of these judges today. We are very honored to have you here with us. Just a year back, Jain Foundation was just a dream, a sapna tha. We just started with one participant, with Neil Bhai and me. And since then, we have successfully completed 150 webinars with over 150 amazing scholars. We have now totally 9 verticals, wherein Jain Talks is one of them. We have started Jain Shala, where we are running online Pratik diploma course, also Preksha Dhyan meditation program. And also we are running Sutratra series in Jain Shala. We also have Jain Yatra, where we are doing virtual tours of the Jinalaya. We have Jain Library, where at presently 25,000 books are available on the Jain Library, on the app as well as on the web. We are started Jain Muni, where all the details of the Munis are there, and we are doing the launch of Vartalap with Dikshartis, which will be launching very shortly. All these available on the Jain Foundation app, YouTube channel, and the website, which is www.jainfoundation.in. We are thrilled today to have the finals of our first ever online competition. Our journey with these participants over the last 1 month has been incredible. In fact, to tell you, I was myself shocked when I heard the first quarterfinals and later on semi-finals. We had different judges for quarter and semi-finals.
and it was very tough for them to choose. We initially thought that we'll have 3 participants, but then because the judges said no, at least we need to do the justification for the participant, and hence we choose 4 in each category. And I'm sure today the judges will have very tough time choosing one out of these 4, because this 4 itself was the best out of the lot what has come so far. And we are very proud of our young future leaders. Once again, very warm welcome and wishing the participant the very best. Nilbhai, you can take it from here. Thank you so much, Mr. Ramesh Shah. Now, I would like to give a quick introduction of our judges on the panel today. So we have Mrs. Sonal Ben Parikh. So I would like to give brief introduction about her. सोनल परिक जी गांधी जी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। वे जर्नलिस्ट, राइटर और पोएट हैं। शी राइट्स फ्रीक्वेंटली फॉर द गुजराती डेली जन्मभूमि। सोनल जी ने 25 से अधिक किताबें प्रकाशित की है, जिसमें 6 पुस्तकें गांधी जी के जीवन को दर्शाते हैं और 1 पुस्तक कस्तूरबा के जीवन के ऊपर भी है। जैन टॉक्स में सोनल जी आज जजेस की पैनल के ऊपर पधारे हैं। हमारे जो दूसरे जज है वो है मिस्टर प्रणव कोठारी। स्पीकर रह चुके हैं और उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की है। करंटली ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एट द लार्ज स्केल एजुकेशन प्रोग्राम्स। ही इज concentrating all his energy and time to work on one singular issue: how to bring technology to improve learning outcomes at scale for low income children. Thank you so much, Pranav Kothari, for accepting our invitation. We have third judge, Dr. Arihant Jain, जिनके बारे में कहूंगा कि वो जैन दर्शन के युवा विद्वान हैं और एमए इन जैन फिलॉसफी में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से आचार्य कुंद के ऊपर पीएचडी हासिल की। He has presented articles at several national and international conferences. Dr. Arihant has directed a documentary film, Prakrit Language, an ancient prosperous tradition, successfully screened and awarded in couple of national and international film festivals. He is also the editor of international e-newsletter Prakrit Times. So we have these prominent judges on our panel today. So I would like to welcome all our judges and thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much. Now we will begin our senior group competition. Before that, I would like to mention rules and regulations. So in each group, there will be 4 participants. They'll be allowed to talk for 5 minutes. At the start, buzzing alarm will play. At the end of 4 minutes, one small beep will play. And once 5 minutes get over, stop buzzing will play. आज के जो भी कंटेस्टेंट हैं उनकी जो स्कोर्स हैं वो 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। एक तो उनका कंटेंट, उनकी कमांड ऑन लैंग्वेज, उनकी स्पीच डिलीवरी, उनकी प्रेजेंटेबिलिटी और उनका मेंटेनेंस ऑफ टाइम। सो इसी के साथ हम सीनियर राउंड की शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट। तो सीनियर ग्रुप के अंदर हमारे जो पहले कंटेस्टेंट है वो विदिशा एमपी से स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर सम्यक जैन का, जो कि एमपी विदिशा से जुड़े हुए एक ऐतिहासिक नगरी है। He has done his post graduation diploma in management and he wants to make his career in digital marketing. He is a peace lover. He likes to spend his free time with friends and family and he loves South Indian food very much. He is a YouTuber and blogger. So we welcome Mr. Samyak Jain. सभी को सादर जय जयेंद्र, आदरणीय मंचासी निरीक्षक गण और सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज का हमारा विषय है जीवन में धर्म का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन अवर लाइफ। भाई एक सेंटेंस में मैं पूरे टॉपिक को सम अप करना चाहूं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो महत्व एक बच्चे के जीवन में माँ का होता है, जो महत्व गाड़ी में पेट्रोल का होता है और जो महत्व मोबाइल में बैटरी का होता है, वही महत्व हमारे जीवन में धर्म का है। भाई जिस प्रकार बिना पेट्रोल के गाड़ी को सिर्फ धक्के मार के चलाया जा सकता है और कभी भी अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक तो नहीं पहुंचा जा सकता,
उसी प्रकार बिना धर्म के हमारे जीवन में हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और जीवन को सिर्फ धक्के मार के ही चलाना पड़ेगा। भाई धर्म धर्म की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अभी आपको बहुत सारी डेफिनेशंस भी सुनने मिलेगी धर्म की, मैं कोई प्रवचन नहीं करूंगा। कोई कहता है कि भाई धर्म है सुबह उठो मंदिर जाओ पूजा पाठ करो प्रवचन सुनो धर्म हो जाएगा। हम जैन है, हम बोलते हैं अहिंसा ही परम धर्म है। कोई कहता है भाई चैरिटी करो दान करो उससे धर्म हो जाएगा। अध्यात्म की बात करो वो बोलते हैं भाई स्वयं को जान लो स्वयं को समझ लो आपका धर्म हो जाएगा। बट आखिर में धर्म है क्या चीज? भाई सिंपल सा मैं ये कहना चाहूंगा, इतनी सारे जितने मैंने पॉइंट्स बोले ये सारे पॉइंट्स एक ही चीज को दर्शाते हैं, आप कैसे अपना जीवन एक आदर्शवादी तरीके से जी सकते हो। अब आदर्श जीवन बनाने के लिए जीने के लिए हमें एक आदर्श भी चाहिए। जिस प्रकार किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट बहुत पसंद है, तो उसके लिए सचिन है उसका आदर्श है, और सचिन जैसा बनने के लिए वो जो भी प्रयास करता है वो उसके लिए उसका धर्म हो जाता है और सचिन उसका भगवान हो जाता है। बट यहाँ पर अच्छी चीज ये थी कि सचिन को उसने खुद डिसाइड किया कि सचिन मेरा भगवान है, मुझे इसके जैसा क्रिकेटर बनना है। बट धर्म में ऐसा नहीं होता है। धर्म में हमारे गुरु हमारे बड़े हमारे पूर्वज जो हमें बोल देते हैं कि भाई ये तुम्हारे भगवान है इन्हीं को मान लो, ऐसा होता है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कभी भी धर्म डिसाइड करना हो, क्योंकि धर्म सिर्फ हमारे फेथ से डिसीजन फेथ का बात नहीं होती है, बट धर्म से हमारी लाइफस्टाइल हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। भाई 4 कसौटी में मैं धर्म को कसना चाहूंगा। पहली बात, धर्म ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा लॉजिक बताए, सही क्या है गलत बताए, गलत क्या है कि भाई सही है तो ये इसलिए सही है, गलत है तो ये इसलिए गलत है, सारी चीजें बताए और फिर आपको डिसीजन लेने का मौका दे। कभी भी आप पे किसी भी चीज को थोपे ना, आपको डराए ना कि भाई ऐसा नहीं करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, ऐसा कभी ना करे। मुझे चीजें बताए, मेरे पे डिसीजन छोड़ दे। तीसरी चीज, मुझे कभी भी पुजारी बना के ना रखे, मुझे पूज्य बनने का मौका दे। फॉर एग्जाम्पल मैं सचिन को अपना भगवान मानूं तो भाई सचिन हमेशा मुझे अपना फैन बना के रखेगा तो मेरा क्या मतलब है, मुझे तो उसके जैसा बनना है ना। तो जब तक सचिन मुझे अपने जैसा बनने का मौका नहीं देगा मैं क्यों उसे अपना भगवान मानूं। और चौथा, जिससे हमारे जीवन में शांति आ सके वो धर्म है। भाई इन चारों कसौटी पर अगर मैं जैन धर्म को कसूं तो 100% जैन धर्म खरा उतरता है। भाई किसी भी बात को आप पकड़ लो, यहाँ पर किसी भी चारों पॉइंट को, आपको जैन धर्म 100% इसमें खरा उतरा दिखेगा। भाई जैन धर्म के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें नहीं, जैन धर्म के सिद्धांतों को अगर आप अपने जीवन में अपना लोगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। भाई एक 7-8 साल का बच्चा भी जैन धर्म के सिद्धांतों को समझता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जब मैं छोटा था 7-8 साल का बच्चा था, शायद 5 साल का भी हुआ होगा, मेरे को बचपन से सिखाया गया बेटा ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर अजीब है, तू जीव है। तो मुझे कभी चोट भी लग जाती थी ना तो मुझे मम्मी होती थी शरीर तेरा है क्या, नहीं है ना, तो क्यों दर्द हो रहा है तुझे। तो शायद मुझे कहीं ना कहीं दर्द कम होता था। कभी मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती थी तो मुझे क्रमबद्ध पर्याय याद आता था कि भाई क्रमबद्ध पर्याय है, केवल ज्ञानी ने जो देख लिया वो वैसे ही होना है, अब मैं क्या कर सकता था। कभी कोई मेरा बुरा कर देता है, कोई व्यक्ति मेरा बुरा कर देता है तो मैं कर्म सिद्धांत को याद करता हूँ कि भाई मैंने पूर्व में किसी का बुरा किया होगा तो आज मेरे साथ भी बुरा हो रहा है। ये सारे सिद्धांतों को पढ़ने के बाद समझने के बाद जीवन में उतारने के बाद मेरे जीवन में कुछ एकदम से अलग नहीं हो जाता है, बट वही परिस्थिति में वही सिचुएशंस में मेरे जीवन में एक शांति का अनुभव रहता है, मेरे जीवन में हाय हाय नहीं रहती, मैं सुकून से अपना जीवन बिता सकता हूँ। ये जीवन में मेरे जीवन में धर्म का महत्व है। ये तो मैंने कुछ ही सिद्धांत बताए हैं, ऐसे जैन धर्म के अनगिनत कितने ही सिद्धांत हैं। अगर आपने कुछ ही सिद्धांतों को अच्छे तरीके से अपने जीवन में अपना लिया ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में शांति आए बिना रही रहेगी। भाई अलौकिक जीवन तो ठीक है, लौकिक जीवन की भी अगर मैं बात करूं, कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, धर्म समाज से दूर रह रहे हैं, तो भी धर्म आपको हमेशा हेल्प करेगा। किसी भी चीज में किसी भी सिचुएशन में आप हो, किसी भी कोई भी आपको डिसीजन लेना हो कि भाई ये सही है या ये सही है, अगर धर्म की कसौटी पे आप उस चीज को कसोगे, उस डिसीजन को कसोगे, आप कभी भी गलत नहीं रहोगे। इतना ही कहना चाहूंगा। अंत में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि धर्म आपको हमेशा सही मार्ग पे चलने का मौका देता है, राह दिखाता है। महावीर भगवान की तरह अगर आप बनने का सपना देखोगे तो जो भी कार्य करोगे वो आपके लिए धर्म हो जाता है। भाई 2 साल से बच्चे के लिए, 2 साल के बच्चे से लेके 100 साल के वृद्ध तक के लिए धर्म बहुत कार्यकारी है। सिर्फ बूढ़ों के लिए धर्म नहीं होता है, बड़ों के लिए भी होता है। धर्म के सिद्धांत पढ़े, जैन धर्म के सिद्धांत पढ़े, अपने बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, अपने माता पिताओं को, बच्चों को, सभी को धर्म पढ़ाएं और उनको अपने जीवन में उतरवाएं। यही मेरी मंगल भावना है। अपना अपने जीवन का कल्याण करें। सभी को धन्यवाद। जय जिंद। थैंक यू सो मच मिस्टर सम्यक जैन। सो हमारी एकदम शानदार जोश वाली बिगिनिंग हो गई है। अब हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो यूपी से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा से जुड़े हुए हैं और जिनका नाम है मिस्टर अच्युत कांत जैन।
he has completed his 2 masters in English and Jain philosophy and currently pursuing MPhil. He is a cartoonist. उन्होंने 130 से स्टोरी बेस्ड वीडियोस बनाए हैं जो कि YouTube पर अवेलेबल है और उन्हें अहिंसा के प्रचार प्रसार में बेहद रुचि है। सो स्वागत है मिस्टर अच्युतकांत जैन। ओम नमः शिवाय। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तरेंच समान। आदरणीय डॉक्टर सोनल पारिक जी, प्रणब कोठारी जी एवं डॉक्टर अरिहंत जी एवं जॉन टॉक्स की संपूर्ण टीम को मेरा सादर प्रणाम। आज की प्रतियोगिता में मेरा प्रतिपाद्य विषय है जीवन में धर्म का महत्व। जगत में एक बहुत ही साधारण सा एक नियम है कि जिस वस्तु का महत्व होता है उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता बहुत होती है। जैसे कि पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो सभी को आवश्यक है। क्या ये बात धर्म पर लागू होती है? आइए विचार करते हैं। दौलत राम जी ने 6 डाला में बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। अर्थात इस 3 लोक में अनंत जीव राशि है। वो जीव राशि सुख की प्राप्ति करना चाहती है और दुख से भयभीत है। परिपूर्ण सुख कहाँ है? तो पूज्यपाद आचार्य ने इसका जवाब देते हुए सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा कि परिपूर्ण सुख मोक्ष में है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। अब आप सोचेंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ से आया? ये जो मोक्ष का मार्ग बताया गया है समंतभद्र आचार्य अनुसार रत्नकंठ श्रावकाचार्य में, इसे ही धर्म कहा गया है। वे कहते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है, सुख प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। अगर जीव सुखी होना चाहता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक ही सुखी होगा। कैसे? आइए देख लेते हैं। सम्यक दर्शन सहित जीव नरक जैसे वातावरण में और तिरंज गति में भी सुखी हो सकता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में देव गति की भी प्राप्ति कर ले और मनुष्य की प्राप्ति भी कर ले तो भी ईर्ष्या के कारण, लोभ के कारण यह जीव दुखी ही बना रहता है। जरा विचार कीजिए, जब सीता जी के ऊपर घोर परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति आन पड़ी, जब मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर कमट ने उपसर्ग किया, जब अंजना जी को 22 वर्ष के पति का वियोग सहना पड़ा, तो उनको इस परिस्थिति में कौन सहायक हुआ? धर्म ही तो सहायक था, जो उनको इन विषम से विषम परिस्थिति में भी लड़ने का संबल प्रदान करता है, समता और सहजता देता है। प्रत्यक्ष ऐसा देखा जाता है कि जिनके जीवन में धर्म होता है वे सुखी, शांतिमय, समतामय और सहजतामय दिखाई देते हैं, और जिनके जीवन में धर्म नहीं होता वे दुखी दिखाई देते हैं। छोटी छोटी सी बातों पे मानसिक तनाव आ जाता है। डिप्रेशन तो एक कॉमन बात हो गई है, और जब ये अधिक बढ़ जाए तो ऐसे लोग धर्म बिना जीव आत्महत्या करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। और जब धर्म सहित परिणति में विषम से विषम परिस्थिति में भी ये जीव धर्म का संबल लेकर के सुखी होता है। आज की जो मेरी उम्र का युवा है वो कहता है कि हम धर्म में विश्वास नहीं करते। धर्म क्या है? धर्म तो लड़ाने का काम करता है, मारने का काम करता है, धर्म के नाम पर हिंसा होती है। हम धर्म को नहीं मानते, हम तो नो रिलीजन वाले हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यह जीव धर्म के बिना रह सकता है? तो इसका मेरा जवाब होगा नहीं। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा, धम्मो वस्तु सहावो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है ना, जीव का स्वभाव जानना देखना है, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है ना, बस यही धर्म है। क्या कोई भी वस्तु अपने स्वभाव के बिना हो सकती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। जिस प्रकार से जितनी आवश्यकता और जितनी महत्वता अग्नि में उष्णता की है, बस वही महत्वता हमारे जीवन में धर्म की है। ये हमारे को यहाँ से समझ में आ जाता है। आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, अगर ये जीव धर्म सहित हो तो अपने हत्यारे को भी माफ कर देता है, उसे मारता नहीं है। और अगर ये जीव धर्म रहित हो जाए तो पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मारने में एक बार भी संकोच नहीं करता। इससे अखबार भरे पड़े हैं। जरा विचार कीजिए, अंतिम बात कहता हूं, कोई आपको मारे, पीटे, दुख दे तो आपको कैसा लगेगा? सिंपल सी बात है, बुरा लगेगा। और इसके विपरीत कोई आपसे अच्छा बोले, आपको दवाई लगाए, आपकी सेवा करे, आपको मीठे मीठे शब्द बोले तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा। बस यहीं से तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अधर्म किसी को भी पसंद नहीं है, उसे सब बुरा मानते हैं,
और धर्म दया, अहिंसा, सत्य आदि को सब अच्छा मानते हैं। इससे ही हमारे को धर्म का महत्व समझ में आ जाता है। रत्नगण श्रावकाचार्य की समंतभद्र आचार्य की अंतिम पंक्ति को बोलकर मैं अपने विषय को समाप्त करूंगा। धर्म के बारे में उन्होंने कहा है, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, अर्थात जो जीव को संसार के सुखों से दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में धर दे, उसे धर्म कहते हैं। हम सभी सुख चाहते हैं, ऐसे उत्तम सुख की प्राप्ति हम सभी को हो। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच मिस्टर अच्युतकांत जी जैन। अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहेंगे और वो है मिस सोनिया मिश्रा, जो कि हमारे साथ थाने से यानी कि मुंबई से जुड़ी हुई है। सोनिया जी का एकदम संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। शी इज परस्यूइंग हर ग्रेजुएशन इन लॉ। उन्हें हिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल्स के विषय बहुत पसंद है। शी लव्स स्पेंडिंग हर फ्री और उनको फ्यूचर में अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है। सो वेलकम सोनिया मिश्रा ऑन दिस जैन टॉक्स प्लेटफॉर्म। Namaste, everyone present over here. I hope that you all are having a very good evening. So the topic on which I will be presenting myself today is the importance of religion in one's life. When I got this topic in the very first round, I had a brainstorming that what should I do regarding this? Should I pursue my research? Should I understand the depth of whatever this religion is? Should I abide by the rules because it is Jain talks? I should understand about Jainism? Yes, I did it. But when it came to speaking, my mind and my heart told that if you have to think about religion, how will you understand the importance? The importance of religion itself is the happiness and the satiety a person gets when he or she sleeps at night. That is the reason I think that Digambars and Shvetambars have a broom in their hand, because they don't think so that by harming any jeev, they will be able to sleep happily. I guess this feeling of paropakar is the importance of religion. When we talk about religion, there are various realms and various norms and hundreds of religion followed in the world. And to a surprise, all the laws and the constitution, our constitution, the world's constitution is somewhere or the else based on religion. Because a right conduct of life, right belief and right knowledge is what religion teaches us. To know what we should pursue, to know how we should pursue, and to know how we should live our lives is the importance of religion. The sheer happiness and satiety that a person gets by doing good deeds and by not harming any other person or any other jeev, by pursuing ahimsa in their own life, is what is the importance of religion in one's life. I feel very sad for the young people who think that their religion is teaching them about terrorism. I feel really bad about the people who think that someone will abolish their religion. We should understand that no religion in this world, irrespective of Jainism, Hinduism, Islam, Christianity, any religion in this world can never teach terrorism, can never teach ahimsa, can never teach something wrong. I feel wrong about the people who do not understand what simple religion is. The acquirance of moksha is a very different thing. But for the young minds like us and for the coming population and the coming world, it is very important. Then they really understand what and how important the religion is, not for the sake of moksha, but for the sake of everyday life in such a way that it leads as an example for another day. That would lead to happiness. If we are reading the text of dharma in our hand and our mind is totally in opposition, do we really understand the importance of religion? But no, it is the thinking, it is the guidance from our within soul that helps us do good deeds, have satiety in ourselves, is what is the importance of religion. If any person in this world can refrain themselves from conducting any crime, then religion has popped up over there and saved them from doing such hideous crime. If any person is able to understand
that they are human being, and human being as a seed requires religion to grow themselves in their life, then the religion has played an important role over there. The feeling of serving other human being and other jeev is the importance of religion. The importance of religion is such that we do not want to reach somewhere, but we want to be somewhere where we enjoy ourselves in our own beings by not any sort of possession, by belongingness, not having the feeling that this is only mine, but this is also mine. Understanding that there are levels which is not given to us by birth, but it is the virtue, it is the morals and the ethics we follow in our life that make us human beings. And that is what is importance of religion. We should understand this, that every person, if they understand the real meaning of religion, there will be no fights, there will be no communal riots, and there will be in terms peace and harmony. The people who have gave us the solution based living had something very superior in the mind for us. But it is very sad that today we are defying the real means. And by living happily, by satisfying our own soul is what is the importance of religion. थैंक यू सो मच मिस सोनिया मिश्रा. सो अभी सीनियर ग्रुप के फाइनल कंटेस्टेंट है हमारे साथ भूषण जैन, जो कि महाराष्ट्र के बीड से है, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, और वो खुद अपना बीएड कर रहे हैं केजे सोमैया कॉलेज मुंबई से. उनका पैशन टीचिंग है और उनको एजुकेशन की फील्ड में ही आगे बढ़ना है. अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक आर्टिस्ट है जिनको पेंटिंग बहुत पसंद है. सो मैं स्वागत करता हूं मिस्टर भूषण जैन का जैन टॉक्स के ऊपर. भूषण. ओम नमः सिद्धेभ्यः. सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र. आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी का मेरा विषय है जीवन में धर्म का क्या रोल है, क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है. तो इन सब बातों को मैं 4 बिंदुओं के आधार से आपके सामने रखना चाहता हूँ. पहला पॉइंट है देश हित के लिए जीवन में धर्म का होना बहुत अधिक आवश्यक है. दूसरा पॉइंट है समाज हित के लिए जीवन में धर्म का होना बहुत अधिक आवश्यक है. तीसरा पॉइंट है परिवार के हित के लिए जीवन में धर्म का होना बहुत अधिक आवश्यक है. और चौथा पॉइंट है कि स्वयं के हित के लिए जीवन में धर्म का होना बहुत अधिक आवश्यक है. तो चलिए देखते हैं कि इन सब का हित धर्म से कैसे हो सकता है. तो सबसे पहला पॉइंट है देश हित कैसे हो सकता है. तो हमने ये देखा कि भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जापान हो, ये सारे के सारे देश आपस में लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं. तो इन सब के पीछे क्या कारण है? माने एक दूसरे को मार करके भी वो एक दूसरे के ऊपर सत्ता जमाना चाहते हैं. तो इन सब के पीछे यदि कोई कारण है तो वो है उनके जीवन में धर्म का अभाव. यदि बचपन से उनके जीवन में धर्म होता, उन्हें ये बातें सिखाई गई होती कि बेटा हिंसा नहीं करना चाहिए, जिसको जितना जीवन में मिलता है उसे उतना स्वीकार करना चाहिए, तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती. वर्तमान परिस्थिति के आधार से हम बात करें तो ये वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है. तो उसके पीछे क्या कारण है? हम सब मिलकर के पूरे चाइना को कोसते रहते हैं कि इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ, पर ये कोई कारण नहीं है. यदि हम उसके जड़ में जाकर के देखें तो उसके पीछे यदि कारण कोई दिखाई देता है तो वो है उनके जीवन में धर्म का अभाव. यदि हमने ये बताया होता उनको बचपन से जीवन में धर्म होता, सदाचार होता, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती. तीसरा पॉइंट यदि देखें तो पूरे देश में हम ये देखते हैं कि पूरे देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ता जा रहा है. भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं वही लोग जाकर के भ्रष्टाचार करने लगे. तो उसके पीछे भी क्या कारण है? कि उसके पीछे भी यही एक कारण है कि उनके जीवन में धर्म नहीं है. उन्हें बचपन से ये बात सिखाई नहीं गई कि मायाचारी नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना सिखाई गई होती तो आज उनका जीवन सुधरा हुआ होता. इसी प्रकार पूरे देश में जहां जहां भी गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है वहां हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ धर्म का अभाव है, इसलिए जीवन में धर्म का होना बहुत अधिक आवश्यक है. दूसरा पॉइंट समाज के हित के लिए जीवन में धर्म का होना बहुत आवश्यक है. हम ये देखते हैं कि समाज में बलात्कार के प्रकरण कितने बढ़ते जा रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे इसका सामना करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इसमें पकड़े जाते हैं. या ऐसा कह सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज का माहौल कितना बिगड़ गया है. तो इन सबके पीछे भी क्या कारण है? छोटे छोटे बच्चे आजकल स्मोकिंग करने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे. इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे यदि कोई कारण है तो वो है धार्मिक संस्कारों का अभाव, जीवन में धर्म का अभाव। यदि जीवन में धर्म उनके होता तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती। तीसरा पॉइंट है परिवार के हित के लिए। परिवार का हित कैसे हो सकता है? तो हम देखते हैं कि पति पत्नी हो, ये लड़ते झगड़ते रहते, सास बहू में झगड़े चलते रहते, तलाक के प्रकरण कितने बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पिताजी को माताजी को पलट करके जवाब देते हैं, माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? हम भी ये कहते हैं कि अरे उनके जीवन में धर्म नहीं है, धार्मिक संस्कार नहीं है, पाठशाला नहीं है, इस कारण से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और अंतिम पॉइंट, स्वयं के हित के लिए भी जीवन में धर्म का होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो स्वयं का हित किसमें है, पहले तो ये बात हमारी ध्यान में आनी चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो चढ़ालाकार पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, माने आत्मा का हित सुख में है, सुख की प्राप्ति करने में आत्मा का हित है। हम ये देखते हैं कि दिन भर में हम जितनी भागादौड़ी करते हैं वो किस लिए करते हैं? सब कुछ सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, एकमात्र सुख की प्राप्ति करना यही हमारा लक्ष्य है। अंतिम पॉइंट तक मैं लेकर के जाऊं तो सुसाइड भी करते हैं, तो क्यों करते हैं? माने सुसाइड करके भी हम सुखी होना चाहते हैं, सुसाइड करना भी सुखी होने के लिए करते हैं, परंतु अभी तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? इसके पीछे यदि कोई कारण है तो वो है जीवन में धर्म का अभाव। हम ये देखते हैं कि एक तरफ बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, पर उन्हीं से हम ये सुनते हैं कि उनके पास सुख नहीं है, सुख सब कुछ है पर भी सुख नहीं है, चैन नहीं है। और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि हमारे महामुनिराज है जिनके पास कुछ नहीं है, मात्र धर्म है, और वो सुखी दिखाई देते हैं। बस अंतिम में एक छोटी सी शास्त्रों में आई हुई स्टोरी बता करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम भगवान महावीर स्वामी के जीवन का परिचय यदि देखें तो भगवान महावीर स्वामी जब शेर की पर्याय में थे तब कितने क्रूर प्राणी थे, मांसाहारी प्राणी थे, एक दूसरे को मार करके खाने वाले थे। पर जैसे ही उनके जीवन में धर्म ने प्रवेश किया तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया। वो शाकाहारी से मांसाहारी से शाकाहारी बन गए और पूरा जीवन उनका बदल गया। तो वो जो प्राणी थे तो वो बदल गए, तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं बदल सकते? इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम सभी को ऐसा लगे कि आत्म शांति के साथ साथ विश्व शांति भी होना चाहिए तो हमारे जीवन में धर्म का होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसी प्रकार मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच मिस्टर भूषण कुमार काले गोरे जी। इसी के साथ हमारा जो सीनियर ग्रुप के कंटेस्टेंट है उनके व्यूज और उनका जो टॉक था वो समाप्त होता है। अब हम थोड़ा फ्लो के अंदर चेंज करेंगे। जजेस की जो फीडबैक है, उनके व्यूज है, वो हम एंड में लेंगे। और अभी हम लोग जूनियर ग्रुप का जो राउंड है वो स्टार्ट करना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच। सीनियर ग्रुप के सभी कंटेस्टेंट को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही अच्छी तरह से टाइमली मैनर में और आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपके विचार इस मंच के ऊपर रखे। अब हम जूनियर ग्रुप में आना चाहेंगे। पहले कंटेस्टेंट है हमारे मिस स्वस्ति जैन, जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़ी है और उनको ट्रैवल करना बेहद पसंद है। डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना उन्हें बहुत पसंद है। उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है और उनको आगे कैलीग्राफी के फील्ड में ही कुछ करना है। सो हम इनवाइट करते हैं स्वस्ति जैन को। स्वस्ति, आपका स्वागत है जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। जय जिनेंद्र। Jain philosophy embraces a beautiful precept. It says जैन धर्म में व्यक्ति विशेष की प्रधानता नहीं, गुणों एवं भावों की प्रधानता है। Meaning जैन धर्म does not nurture the preponderance of an individual, it nurtures the preponderance of the attributes of an individual. And the attributes, and the one whose attributes are glowingly gauged upon is a Vitragi, Sarvagya and Hitopdeshi Bhagwan. And he being a divine soul, we all should tread his path of Jain lifestyle unwaveringly. Now, what does that Hitopdeshi marg emanate to the humanity? So in the first place, it indoctrinates the virtue of forgiveness. By pursuing forgiveness, we can transform our hot-tempered thoughts into goodwill and attain calmness. In fact, Jainism says that forgiveness is the nature of a soul. Hence, it is aptly said, ki kshama dharma ka mool hai. Now, after understanding what is dharma ka mool, we need to lay our wit on the staple exercise of Jainism, that is virtue of non-possessiveness or aparigraha, which particularly today has taught us to revamp ourselves. Because parigraha chinta ka mool hai. The more our desires increase, the more stressed and tensed we get. So Jainism says that besides aparigraha being a
principle of Jainism, it is also a yogic principle. So at a certain juncture of time, we need to balance our possessions in a manner that we don't possess anything redundant and are appeased at the same time. So if we have to revive our lives, aparigraha is what we ought to adapt. So thus, two of the cardinal principles of Jainism are non-possessiveness and forgiveness, and they are complementary and harmonious to each other. Moving ahead, it is a well-established fact that we love life and fear death. So to our great fortune, we have got up and running senses in our bodies with which we can communicate and convey our pain and agony. But ladies and gentlemen, what about those tongue-tied and speechless souls? What do they have to evince their pain towards something brutal happening to them? Hence, the Jain Sattvic Ahara or the Jain Sadachara is very applicable today, since it is an embodiment of peace. It promotes non-violence, it eradicates slaughtering, and besides, it strengthens our physical and spiritual health. Now, speaking of health and Shuddha Ahar, Jainism today also stimulates the slogan "vocal for local," meaning local and seasonal fruits, vegetables should be consumed. For example, mango is a fruit of summer, but consuming a mango in a rainy season is considered as abhaksha in Jainism, since fruits like mango start developing tiny worms inside them. And besides, we don't need nutritionists and dietitians to tell us that fact, because it is our Jain Sadachar, it is our Jain way of life. Moving on, if we plunge into recognizing the Jain way of life, let us comprehend it with the current example of COVID-19. So for obvious reasons, there's immense fear about this unfortunate reality. Fear, and in customary terms, fear is something that is grave and must be scratched off. But a Jain will not fear the fear, meaning a Jain will not react, but respond by staying unaffected and unimpressed to fear. Because Jainism says and believes that at a certain age, निश्चित आयु पे हर कार्य अपने समय में क्रमबद्ध तरीके से होता है. We cannot avoid it, and it is a universal truth. And here we need to acknowledge the fact that Jains are far more emotionally intuitive than others and develop empathy with whomsoever they meet. Moving on, Jainism, the purest religion in the world, includes the principle of Vastu Swatantra, that is independence of every single object existing. A very profound and deep-seated philosophy to understand, but in a nutshell, it means every dravya or substance in the world and beyond is eternally independent in nature. None creates or changes the other. Or in other language, अगर पूरे जैन वांग्मय को एकत्रित करके कहना हो, तो फिर वस्तु स्वातंत्र्य ही जैन धर्म है और उसके प्राप्ति का उपाय स्वावलंबन है. And those who recognize the independence of this independence attain Godhood in course of time. Well, now what is the ultimatum of the 21st century? It is to survive at the end of the day after all the stress and weariness from the elbow grease. But the core of our day should be grounded in a lifestyle that is awake, empathetic, and filled with gracious communication, hit with the Priya Vachan, and is able to surge our mental and spiritual health. And Jain lifestyle is what one needs to accustom here to. Lastly, I would like to say that if there's anything on the face of this universe about which I feel immensely blessed, is that firstly, I am a proud Indian, and secondly, that I am a Jain. Wishing all of you a serene and pious year ahead. I rest my words here. Jai Hind. Thank you so much, Miss Vasti Jain. So जूनियर ग्रुप के कंटेस्टेंट आना चालू हो गए हैं और हमारे ये फर्स्ट कंटेस्टेंट थे. अब हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं. पहले कंटेस्टेंट राजस्थान से थे, अभी मध्य प्रदेश से खनिया धाना से मिस्टर स्वानुभव जैन जुड़ रहे हैं, जो कि शास्त्री में बीए कर रहे हैं और उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है. ज्यादातर वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं और वो घर का खाना ही खाते हैं, आउटसाइड फूड वो प्रेफर नहीं करते हैं. और अगर शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन को कंपेयर किया जाए तो उन्हें ग्रामीण जीवन ज्यादा पसंद आता है. तो हमारे साथ खनिया धाना से स्वानुभव जैन जुड़े हुए हैं. सो स्वागत है स्वानुभव जैन आपका जैन टॉक्स. भाई साहब आप आ रही है बस. हाँ. संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायक गण एवं इस संभाषण प्रतियोगिता को ऑनलाइन सुन रहे सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र. आज की इस प्रवर्तमान संभाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है जैन जीवन शैली एवं उसकी प्रासंगिकता.
यदि इस विषय के निष्कर्ष तक आप सभी को पहुंचना है तो इस विषय को एक प्रश्न के रूप में अपने दिमाग में अंकित कर लीजिए। क्या है जैन जीवन शैली एवं वह जैन जीवन शैली प्रासंगिक है या नहीं। उसकी प्रासंगिकता को भी हम दो आधार से समझेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस जैन जीवन शैली को अपनाया जा सकता है या नहीं, एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस जैन जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता है या नहीं। चलिए इन सब प्रश्नों के साथ चलते हैं हम अपने विषय की ओर। भारतीय संस्कृति के कर्णधार भारतीय धर्म एवं दर्शनों में अपने गौरवमयी स्थान को प्राप्त जैन धर्म एवं दर्शन, जैन धर्म दर्शन एवं उसका आचार अर्थात उसकी जीवन शैली की जैनेतर मनीषियों, विद्वानों एवं आचार्यों के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। परंतु यह सारा विश्व उसकी प्रामाणिकता को तो निर्बाध रूप से मानता है, परंतु उस जैन जीवन शैली को आदर्शता की टोपी पहनाकर उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। अतः वर्तमान समय में समाज, राष्ट्र, देश एवं इस विश्व के लिए उस जैन जीवन शैली की प्रासंगिकता दर्शाना अत्यधिक आवश्यक है। वास्तव में तो उस जैन जीवन शैली की लोकहितकारिता, प्रयोगात्मकता, विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता ही उसकी प्रासंगिकता का आधार है। और ये महान भारत देश, इस देश में रह रहे देशवासियों की कुंठित सोच, अपरिष्कृत गिलेवान, कलुषित जीवन, इस देश में हो रहा बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी समस्याएं और उन समस्याओं के कारण अप्रगति के दलदल में फंसे हुए इस देश की करुण चीत्कार ही जैन जीवन शैली की प्रासंगिकता का आधार है। तो क्या है ये जैन जीवन शैली एवं इसे कैसे अपनाया जा सकता है। देखिए, जैन आचार्यों की जीवन शैली तो पूर्ण रूप से प्रामाणिक एवं आदर्श ही है, प्रशंसनीय ही है, परंतु भौतिकता की चकाचौंध में फंसे हुए भोगों के लंपटी और व्यसनी जीवों के लिए वह प्रासंगिक सिद्ध नहीं हो सकती, अर्थात वे उसे अपनाने में असमर्थ हैं। अतः जैन आचार्यों ने जन सामान्य के लिए उपयोगी एवं सरल जीवन शैली का निर्माण किया है, जो जनहितकारी होने से प्रासंगिक ही है। जैन आचार्यों द्वारा प्रदत्त जीवन शैली अर्थात अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, यदि इनको अपनी जीवन शैली में अपना लिया जाए तो हम इस देश की, इस विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सकता है। यदि हम अपनी जीवन शैली में अहिंसा को अपना लें, अर्थात छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, मनुष्य हो या जानवर, उसकी रक्षा का परिणाम यदि हमारे हृदय में होगा, उनकी हिंसा के विचार मात्र से यदि हमारी रूह कांपेगी, तो हम फिर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। और इस देश में हो रहे पर्यावरण दूषण, इस देश में हो रहे जलाभाव, इस देश में हो रही ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी यदि सत्य को अपने जीवन का अंग बना लिया जाए। हर व्यक्ति यदि वास्तविकता के साथ जिए तो वास्तव में भ्रष्टाचार, साक्ष्य परिवर्तन, मिथ्या अभिलेखन, मिथ्या अभिभाषण जैसी कुरीतियां हमारे समाज से कोसों दूर चली जाएंगी। यदि अचौरता को अपना गुण बना लिया जाए, दूसरों के हक, दूसरों के सम्मान की चोरी ना की जाए, तो इस देश में साक्ष्य परिवर्तन, इस देश में असुरक्षा की भावना, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी। यदि ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का अंग बना लिया जाए, ब्रह्मचर्य में जीवन जिया जाए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अब स्व स्त्री में संतोष रहकर हम उम्र की स्त्रियों के साथ बहन का व्यवहार, अधिक उम्र की स्त्रियों के साथ माता का व्यवहार, कम उम्र की स्त्रियों के साथ बेटी का व्यवहार करे, तो इस देश की हर माँ, हर बहन, हर बेटी सम्मान के साथ जीवन जी सकेगी। इस देश में सड़कों पर, 20 सड़कों पर बलात्कार का शिकार हुई स्त्रियों के विवश देह को देखकर होने वाली माताओं की दारुण जो रुदन है, उसकी आवाज फिर हमारे कानों में नहीं गूंजेगी। जनसंख्या वृद्धि, भ्रूण हत्या, एड्स जैसी जो समस्या है वो हमारी समाज से कोसों दूर चली जाएंगी। यदि परिग्रह का परिमाण किया जाए, परिग्रह की वृद्धि ना की जाए, तो दो जिस्म एक जान की मानसिकता से जी रहे हुए भाइयों के बीच में, हंस खेलते हुए परिवारों के बीच में फिर बंटवारे नहीं होंगे, भंडारण, दहेज प्रथा जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। इस प्रकार यदि जैन जीवन शैली को अपनाया जाए तो हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। देखिए, इन चंद मिनटों में जैन जीवन शैली की बुनियादी शिखरों को छूना संभव नहीं है, अतः मैंने उन सबको समाहित करते हुए कुछ अंश को आपके समक्ष रखा है। यदि इनको भी अपनी जीवन शैली में अपना लिया जाए तो हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जैन जीवन शैली के आगे लगा हुआ जैन शब्द वो किसी मत या संप्रदाय का प्रतीक नहीं है, अतः यह जीवन शैली मात्र जैनों के लिए नहीं, जीवन शैली के आगे लगा हुआ जैन शब्द सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी का प्रतीक है। यदि हमें अच्छाई के साथ जीना है तो जैन जीवन शैली को अपनाएं, सच्चाई के साथ जीना है तो जैन जीवन शैली को अपनाएं, ईमानदारी के साथ जीना है तो जैन जीवन शैली को अपनाएं। इस प्रकार हम सभी भी जैन जीवन शैली को अपनाएं और दूसरों को भी जैन जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दें। जय तु जिनेंद्र। Thank you so much, Mr. Swanubhav Jain, for this wonderful talk. Now we have our next contestant, Miss Jia Shah from Bangalore. She is a student of Vidyashilp Academy in Bangalore. English is her favorite subject and she wants to work in the field of empowering women.
So I welcome Ms. Jia Shah on this Jain Talks platform. Can you hear me? Yeah, Jia, we can hear you. Okay. Yesterday, I was walking down the road and by mistake, I stamped an ant. My mom, who was with me at that time, told me to pause and send a prayer for the soul. To pause for a moment. That's it. That is the beauty of Jainism. To pause, to feel, to be aware, and to be conscious of everything around us. Jain lifestyle is based on three main philosophies: ahimsa, non-violence; aparigraha, non-possessiveness; and anekantat, non-absolutism. In short, they're called the three A's of Jainism. Let's start with ahimsa. In its purest form, ahimsa is the spontaneous expression of the highest form of love, an unconditional sense of belonging to everyone and everything. The concept of ahimsa has been demonstrated by many philosophers, political activists, scholars, etc., such as Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., and the Dalai Lama, to name a few. These warriors of ahimsa teach us that conflict is inevitable in the human world, but that we can bring love and compassion amidst conflicts to resolve them and make a positive impact in the world. In today's world, where we're so often threatened and shocked by violent incidents like mass shooting, adhering to ahimsa may seem unrealistic, but it's not impossible. The recent story of the peaceful reconciliation inspired by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar between the Colombian government and the FARC guerrillas in June 2015 that became instrumental in ending the brutal 2052-year-old war that has left 225,000 dead and another 7 million displaced is one of the best examples of the power of ahimsa today. Moving on, our lives are full of moments we wish would never end. It could be something simple like a long hot shower on a cold day, or a nice night with your family after a long day of work. We wish that our children could stay young, that our world would stay safe, and so on. But change is inevitable, and clinging to moments and possessions, past or present, will not bring us peace. That is the lesson of aparigraha, the second A of Jainism. Aparigraha has many translations. In its purest form, it resembles vairagya, the Sanskrit word for detachment and renunciation. It is a path that sadhus take to begin a life of austerity. We don't have to take this austere path to learn that things we call possessions can create madness. We only need to look around us. We're a storage society of boxes and closets and cupboards and homes stuffed full of things that we do not use, but still will not part with. It's not that we shouldn't enjoy material objects, but somewhere along the way we become hoarders of them. These things here, we say, they're mine. And we're so conditioned to think of terms of me and my that sometimes we forget that not everything in the world belongs to us. When we embrace aparigraha, we become like the fledgling bird. We learn that we're not born to stay clinging to a branch. We're born to soar. Lastly, anekanvat, the concept of no absolute truth. By definition itself, the word means that there is no specific word or narrative that can either describe the phenomenon in its entirety or even ascribe to it an absolute meaning. What may be true for me with regards to an incident may not be true for you. At the same time, this does not mean that my truth is a falsehood. It just means that I have a partial view and there are other facets of the same incident which I am not aware of. A perfect example for this would be as participants today at the event. We're all talking in the same statement, yet our views on it are so different. But that doesn't mean only one of us is right and the rest are all wrong. We're all right. It's just the way we look at it. In today's time, where information spreads like wildfire and viewpoints are formed in split seconds, and people are tried by the media even before they can react, if each of us, before we forward a message, before we retweet the tweet, before we do an Insta share and pass our comments, just once put yourself in the other person's shoes. Just once. These are the three A's that Jain lifestyle is based on. We try to follow these in every aspect of life. And I feel that if the whole world started following these principles, a whole lot of our problems, such as global warming and war, could be solved. Thus, I'd like to conclude by saying that Jainism teaches us to look at the world in a different light. It teaches us to live and let live.
And that, I believe, could be one of the greatest lessons of all time. Thank you. Thank you so much, Miss Jia Shah. Now, our junior group's last contestant, Miss Arundhati Jain from Delhi. She's very foodie and she loves Italian food, Italian cuisine. Mathematics and English are her favorite subjects, and she loves traveling and she loves to spend her free time for social work. So I welcome Miss Arundhati Jain. मंजिल मिले ना मिले मुझे उसकी कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरी आरज़ू तो है। मैं दिल्ली से अरुंधति जैन कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरी आयु 13 वर्ष। सर्वप्रथम मैं जैन टॉक्स की आभारी हूँ कि उन्होंने हमें यह मंच प्रदान कर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने का यह स्वर्णिम अवसर दिया। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों व निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों को मेरा आभार व जय जिनेंद्र। मैं आज जैन जीवन शैली व उसकी प्रासंगिकता के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। कहते हैं कि पूरा संसार नियमों से चलता है, मनुष्य जीवन के भी अपने नियम होते हैं। यहाँ तक कि हर पेड़, हर फूल, हर प्रकृति के कण में अपने नियम होते हैं। इससे ही प्रश्न आता है, धर्म क्या है? धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराए। मेरे हिसाब से धर्म न तो हमें केवल जीने की कला सिखाता है, परंतु हमें मरने की कला भी सिखाता है। इसीलिए जैन धर्म अपने आप में अद्भुत है। इसका एक और कारण है क्योंकि जैन धर्म वैज्ञानिक है। आज के समय में जैन धर्म हर चीज की लॉजिक सहित व्याख्या करता है। भगवान महावीर द्वारा बताए गए उपाय जैन धर्म के महत्वपूर्ण अंग है। भगवान महावीर का पहला सूत्र है, हमारे जीवन में घृणा का कोई स्थान नहीं। इसका अर्थ है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करे। अब समस्या यह है कि इंसान अपने अलावा सबको भूल रहा है। वह आगे बढ़ने के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि वह दूसरों को धक्का देने से बिल्कुल नहीं कतराता। अगर हम एक स्वस्थ जीवन जीना है, अगर हमें एक स्वच्छ जीवन जीना है, तो हमें अपने जीवन में से घृणा को त्यागना होगा। जैन जीवन शैली का दूसरा सूत्र है शांति वृत्ति। हमारे जीवन में आवेश ना हो, उत्तेजना ना हो और जैसे को तैसे की भावना तो बिल्कुल भी ना हो। पर अब दुख की बात यह है कि लोग छोटी छोटी बातों पर आवेश में आ जाते हैं, जिससे न तो केवल उनका परंतु उनके पूरे परिवार का, उनके मित्रों का, उनके सब रिश्तेदारों का जीवन भी कष्टमय हो जाता है। हम जैन धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी मन की शांति को जीवन में कैसे उतारना है। हमारा धर्म ऐसा है जिसमें हमें कर्तव्यों का भान तो होता है, परंतु आवेश का भूत सर पर सवार बिल्कुल नहीं होता। एक जैनी व्यक्ति सोचता है कि उसे पानी छाने बिना नहीं पीना है। अगर उससे एक चींटी भी मर जाती है तो उसका दिल कांप उठता है। हमारी जीवन शैली में शांति वृत्ति एक महत्वपूर्ण अंग है। जैन जीवन शैली का तीसरा सूत्र है श्रममय जीवन जीना, श्रम युक्त जीवन जीना। इसका अर्थ है श्रमण परंपरा। श्रम व स्वावलंबन जैन जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग है। जैन जीवन शैली का चौथा सूत्र है अहिंसा। जैन धर्म का प्रभाव जब तक हिंदुस्तान पर था तब तक हिंदुस्तान कभी कायर नहीं था। हम उदाहरण के लिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का ही समय देख लेते हैं। उन्होंने सभी राजाओं को अहिंसा के सूत्र में पिरो रखा था। जैन धर्म का अहिंसा का सूत्र न केवल जैन धर्मावलंबियों के लिए परंतु पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। हमारा हिंदुस्तान परतंत्र बना आपसी झगड़ों और फूट के कारण। हिंसा की वजह से संपूर्ण विश्व में विध्वंसक स्थिति बन चुकी है। ऐसे में जैन धर्म का जियो और जीने दो का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैन जीवन शैली का पांचवा सूत्र है इच्छा परिमाण। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वह असीमित है। शायद विश्व की इस विध्वंसक स्थिति का कारण भी मनुष्य की न खत्म होने वाली इच्छाएं व लालच ही है। मनुष्यों ने किसी को नहीं छोड़ा, न वनों को, न जंगली जानवरों को और न ही समुद्री प्राणियों को। पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा चुका है। हम हर रोज वैज्ञानिकों का नया शोध देखते हैं कि धरतीकांत निकट है। जैन जीवन शैली का छठा सूत्र है व्यसन मुक्त जीवन। जैन जीवन शैली से जीने वाला व्यक्ति कभी जुआ नहीं खेलेगा, हमेशा नशीले पदार्थों से दूर रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो जैन धर्म की प्रासंगिकता आज भी सबसे ज्यादा है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन, एक सुंदर जीवन प्रदान करना है तो हमें उन्हें बचपन से ही जैन जीवन शैली के बारे में जागरूक करना होगा। जैन धर्म अब सिर्फ एक धर्म न बन के रह जाए,
बल्कि एक आदत बने। विनाश के कगार पर खड़ी है धरती, हमें चीख चीख कर बुला रही है, चीख चीख कर आह्वान कर रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो आगे आइए, आइए उसकी सहायता करिए, आइए जैन जीवन शैली को अपनाइए, आइए जैन धर्म को अपनाइए। धन्यवाद। जय। थैंक यू सो मच मिस अरुंधति जैन। सो बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई और इसी के साथ बहुत ही जल्द इस कंपटीशन का फाइनल राउंड भी हो गया और हमारे लास्ट कंटेस्टेंट ने भी खुद के जो व्यूज थे अबाउट जैनिज्म वो जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर रखे। सो अभी आज के जो 2 राउंड्स हुए हमारे सीनियर और जूनियर ग्रुप के, उस राउंड के बारे में, हमारे जितने भी स्पीकर्स थे उसके बारे में और ये जो यूथ टॉक था इसके बारे में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए मैं जजेस को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे और उनके व्यूज दे आज की इस यूथ टॉक्स के ऊपर। Everybody, such a pleasure to listen. Really had a hard time deciding on the scoring. लग रहा था सबको हर डोमेन पे 10 points देना चाहिए. You know, I think I appreciate the variety of thoughts. भिन्न तरह के विचार present किए थे आज. And there's also a lot of quotations and quotes that have been picked up. So the participants ने काफी research किया, ढूंढे कि क्या श्लोक या क्या विचार from the history, from the text that were made. I like the fact that we had more balanced views, right? There was कि कोई भी जैन बन सकता है. It's not necessary that you are born into a Jain household, but it's about the acts. आप जो करते हैं उसका वो definition है जैनिज्म का, ना ही कि आपका सरनेम या आप कौन से घर में born हुए थे. So yeah, lots of practical advice, lots of good viewpoints, and I learned a lot. So thank you to all the participants for preparing so well. Everybody was very fluent, so I'm sure you have practiced many times before this. So thank you very much. Thank you so much, Pranav bhai, for your valuable feedback. Now I would like to request Mrs. Sonal Parikh to share her views. सबसे पहले तो मैं इस इनिशिएटिव के लिए जैन फाउंडेशन को बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी और दूसरी बात ये कि सच में वैरायटी ऑफ थॉट्स बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था और किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है, पर फॉर्मेलिटी है, चुनना तो पड़ेगा. लेकिन आई वुड लाइक टू से ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट कि ऐसी एक टॉक के अंदर पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है, क्योंकि जब आप ऐसे कोई सब्जेक्ट को, धर्म के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट को चुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एकाग्र होकर बात करते हैं, तो तब आपके अंदर जो जागता है, आपके अंदर जो पनपता है, उसको पाना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है. बहुत अच्छा लगा यंगस्टर्स को सुन के और बहुत खुशी हुई. थैंक यू. Thank you so much, Sonal Ben, for your valuable feedback. Now I would like to request our Yuva Vidwan, Dr. Arihan Jain. Thank you so much, Neil bhai. First, I will congratulate all participants that they presented the importance of religion in life in a very beautiful and significantly, and also spoke about its usefulness. So judging is very difficult job, and I think you all are winners, and I wish you all a bright future. I want to add one more thing in this context, that हम अक्सर धर्म को हम लोग रिलीजन से जोड़ देते हैं, मानते ही हैं अलग अलग धर्म, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरीके से ठीक इसलिए नहीं है बिकॉज धर्म का जो महत्व है ना, वो किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं है, बल्कि हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उससे रिलेट करता है. जैसे हम कभी कभी हम कहते हैं ऐसा कि ये तो हमारा धर्म है, मतलब ये हमारा कर्तव्य है. तो ये एक्चुअली ह्यूमन वैल्यूज को हम लोग धर्म को अगर ज्यादा रिलेट करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. और अक्सर हम उन्हें धार्मिक कहते हैं जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
लेकिन सिर्फ इसी को अकेला धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। जो लोग अपना काम जो ईमानदारी से करते हैं, जो सत्यनिष्ठा से करते हैं, माने जो जीवन मूल्यों को अपनाते हैं, वो भी धार्मिक कहलाने योग्य हैं। और जैसा कि अगर हम इसको अगर हम इस फिलोसॉफिकल वे में बोले तो हमारे आचार्यों ने कहा है वस्तु स्वभाव धर्म, यानी वस्तु का स्वभाव धर्म है, मतलब उसका गुण। यानी जैसे पानी है, उसका स्वभाव शीतलता होता है, उसको कितना भी गर्म कर लो, कितना भी गर्म कर लो, घंटे 2 घंटे बाद अपने स्वभाव में यानी वो ठंडा हो जाता है, शीतलता हो जाता है। और ये सिर्फ यही नहीं है, पूरे विश्व में यही इसकी स्थिति है। तो धर्म रिलीजन है, बट धर्म को हम अपने स्वभाव से भी जुड़ें, अपने गुणों से भी जुड़ें, तो हम लोग और इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज धर्म कहीं ना कहीं एक डिवीजन लाता है, लेकिन ये जो धर्म होता है वो हमारे ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाता है। और बहुत अच्छा बोला आप सभी लोगों ने, जैन जीवन शैली पर भी सारे ही पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा, और बहुत ही ऐसा लग नहीं रहा था कि लोग बच्चे हैं, मतलब बच्चे जो जूनियर्स हैं, ऐसा लग नहीं रहा था, काफी मैच्योर ढंग से वो लोग बोल रहे थे। और जैसा कि हमारी जैन जीवन शैली में कहा ही जाता है कि भगवान महावीर ने रत्नत्रय को आधार बनाकर विचारों में अनेकांत, वाणी में स्याद्वाद और आचार में अहिंसा और अपरिग्रह लाने को ये 4 सूत्र दिए हैं। तो अगर ये हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो जरूर हम हर तरीके की प्रतिकूलताओं से भी बच सकेंगे, हम उसमें भी विवेक धारण कर सकेंगे, और हम समभाव के रूप में उसमें रह सकेंगे। तो बहुत बहुत सभी पार्टिसिपेंट को बधाइयाँ। अच्युत, भूषण, सम्यक, सोनिया, अरुंधति, जिया, स्वानुभव, स्वास्थी, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, बहुत बहुत आपको बधाई। और देखते हैं क्या होता है। Thank you so much, Dr. Arihan Jain, for sharing your valuable feedback. ये सभी के लिए बहुत ही encouraging था और बहुत ही सुंदर वे से आप हमारी टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जब ये जैन टॉक्स और यूथ टॉक की पोस्टर बाहर पड़ी थी तो बहुत सारे ऑडिशन वीडियो आए थे, उसके अंदर से सिलेक्ट करना, उसके बाद क्वार्टर फाइनल राउंड, उसके बाद सेमीफाइनल राउंड, और ऐसे करते करते शॉर्टलिस्ट करके आज जो कैंडिडेट्स थे वो फाइनल राउंड्स में पहुंचे। और आपने बहुत सुंदर तरीके से आपके विचार इस मंच के ऊपर रखे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट जैन फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर रमेश शाह to share his views and valuable feedback. Mr. Ramesh Shah. Thank you, Neil bhai. I apologize, I'm traveling in Rajasthan. This is one of my dreams to come true. Thank you all the participants. Thank you judges for their valuable time. And I would like to specially thanks to all the Jain Foundation team, Rashmi ji, Smita ji, Pratik, Rahul, Vipul, and especially Neil bhai, to putting in a lot of efforts to see how this whole experience adds value to the youth of today. And they can take, it's not about the Kindle, but they also take some principles in their life. And I hope that we probably manage to create that. Thank you so much. थैंक यू सो मच मिस्टर रमेश शाह। और मैं सभी जजेस का पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आपका वैल्यूएबल टाइम जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर दिया। और इसी तरह आप हमें गाइडेंस देते रहिएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है यूथ टॉक्स की। ये यूथ टॉक्स को हमें बहुत आगे लेके जाना है और आगे चल के ऑफलाइन इवेंट्स तक भी पहुंचना है, टेडेक्स जैसा स्टैंडर्ड हमें लाना है। सो प्रणव भाई, आपका भी मार्गदर्शन बहुत बहुत रिक्वायर्ड रहेगा इसके अंदर। तो इसी के साथ हम आज के इस राउंड को विराम देंगे। जो भी कंटेस्टेंट है वो वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ही जजेस के पास से स्कोर कार्ड आएगा उसको टोटल करके रहेंगे, उसके बेस्ड के ऊपर ही रिजल्ट होगा और वो जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। सो इसी के साथ हम आज के इस यूथ टॉक के सेशन को विराम देते हैं। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप इसी तरह इसके साथ जुड़े रहिए, आते रहेंगे और युवाएं अपने विचार इस मंच के ऊपर रखते रहेंगे और जो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। पर पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन के प्रीवियस जितने भी टॉक्स हैं
उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको पर मिल जाएगी और साथ ही साथ www.jainfoundation.in वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध होगी। कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन के थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।